Okay, friends, let us see the Citizenship Act of 1955. So we know that the Parliament has been given the power to make citizenship laws as well as the citizenship law or the Article 10 of the Indian Constitution. It also mandates that Parliament can make a law stating otherwise. Okay, in case of continuation of citizenship. So, दो power है. There are two kinds of power. One is Article 10 and one is Article 11 that is granted to the Parliament. And Article 11 जो है ये इससे जो है this is from Article 11 this Citizenship Act. So somebody can ask you that how can the Parliament enact laws on citizenship? So you will simply tell them that please read Article 11 of the Indian Constitution. And there the power is mentioned. So using that power, a statutory law was made. Okay. So Citizenship Act of 1955 was enacted under Article 11 of the Constitution, which gives the Parliament the power to regulate citizenship. So what is this power? This is a regulatory power. Okay. And the act defines who is a citizen of India and the methods for acquiring or losing citizenship. So, what does it define? Who is a citizen of India? How a person can acquire and how a person can lose the citizenship as well. A person who is naturally born in India, a person whose parents were Indian, and he is a natural citizen of India, he is not naturalized. He is natural citizen, starting से citizen है, birth से citizen है. Can he be deprived? Can he lose his citizenship? मेरा क्वेश्चन ये है there are two kinds of people. One person is like Adnan Sami. Adnan Sami was given citizenship. He was initially a Pakistani, then he was granted Indian citizenship. Okay, so we will say that Adnan Sami is a naturalized citizen. But let us say me, okay, or you guys and me, we are what? We are citizens since birth. So can we be deprived? अदनान सामी चलो डिप्राइव हो सकता है, दैट आई हैव गिवन यू, दैट आई हैव टोल्ड यू. बट क्या हम डिप्राइव हो सकते हैं? ओके, सो दिस इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस लेटर. अमेंडमेंट्स ओवर टाइम सो 1986, 2003, 2005 और 2019 में इसको जो है अमेंड किया गया है. मैंने आपको बताया है दैट सक्सेसिवली it has become harder to get the Indian citizenship. Okay, harder to get Indian citizenship. Okay. सो मोड्स ऑफ अक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप उसमें देखते हैं कैसे. सो बाय बर्थ, सेक्शन 3 ऑफ द 1955 एक्ट इट टॉक्स अबाउट बाय बर्थ. ओके, कैसे होता है? बाय डिसेंट. ओके, यू नो इन योर लीनिएज देयर माइट बी सम इंडियन, so you have a claim, but how? This is given in section 4. And by registration, you completed certain criterias, and then you can register yourself. All right. By naturalization, again there are criterias, and then you can register yourself. And by incorporation of territory, इसका मतलब जैसे सिक्किम में जो है, Sikkim was a foreign country once upon a time. It was a protectorate of India. And when the people of Sikkim merged with Indians, they became Indian citizens overnight. Okay. So कल को जो है, अगर हम गिलगिट बाल्टिस्तान और Pakistan occupied Kashmir, if we take back Aksai Chin, so all the people who will come with that territory, they can become Indian citizens. Okay. So let us talk about in detail. So citizenship by birth. Now this can come as a question. Last time UPSC asked a question from the citizenship area was in 2021. So citizenship by birth की हम बात करते हैं. So a person born in India is considered an Indian citizen if they meet the following condition. तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन है. तो सबसे पहले आपको पता है 1986 में the condition was changed because we had a change in the Citizenship Act. So before 1st July 1987, any person born in India was automatically an Indian citizen regardless of the nationality of their parents. So अभी जो यूएस में है, आप देखते होंगे कि many people they are going to the US and having their kids, और अभी पैनिक हो गया है. And people they are having kids before the 9-month period, in the 7th month and the 8th month.
ओके, सो यहां पर क्या था कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया में बॉर्न होता था तो ही वुड बी ऑटोमेटिकली एन इंडियन सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स। उसके बाद 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 के बीच में द पर्सन मस्ट बी बॉर्न इन इंडिया, ओके, एंड एटलीस्ट वन पेरेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन at the time of birth. So you must be born in India. So this was something that was there before also, but now one more thing that was added, कि at least one parent has to be an Indian citizen. So we realize sort of that बहुत ज्यादा ज्यादा लोग हो चुके हैं already. तो ये जो concept है birth based citizenship का, तो that was amended and now you have to be born and one parent has to be an Indian citizen at the time of birth. उसके बाद देन 2004 के बाद ऑल्सो वी हैड अ चेंज, सो द पर्सन मस्ट बी बॉर्न इन इंडिया एंड द बोथ पेरेंट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन और वन पेरेंट मस्ट बी एन इंडियन वाइल द अदर मस्ट नॉट बी एन इलीगल माइग्रेंट। मतलब सपोज योर ओके योर, अच्छा अगर ऐसा सिचुएशन आए, लेट अस टॉक अबाउट अ सिचुएशन, इसको पढ़िए आप पहले, यू जस्ट रीड दिस, बोथ पेरेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन विच इज द केस इन ऑल ऑफ आर यू नो, हमारे सारे जो भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं सभी के केस में बोथ आर पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन, आई कैन सेफली अज्यूम। बट एक और उसमें चीज क्या थी, और वन पेरेंट मस्ट बी इंडियन while the other must not be an illegal migrant. Now what happened is that let us say that a person, he marries a lady, okay, and that person, he is from, let us say, Gurugram, okay, Gurugram में वो काम करता है, and he marries a lady, and that lady turned out to be a Bangladeshi migrant who came to India by tunnels or something. सो डू यू थिंक दैट अगर उनसे, अगर इफ दे हैव अ किड और वो पता चलता है दैट दैट लेडी, ओके, दैट लेडी इज एन इलीगल माइग्रेंट, तो उस किड का भी प्रॉब्लम में आ जाएगा सिटीजनशिप, दैट किड माइट ऑल्सो बी इन प्रॉब्लम, यस। तो यहां पर आप समझिए, फिर मैं कह रहा हूं, बोथ पेरेंट, सपोज, ओके, बोथ पेरेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजन or one parent can be an Indian citizen and other parent must not be an illegal migrant. Okay, so ये कब से है? 3 December 2004 से। We started with anyone born in India, then after 1986, in 1987 we put a new modification, that is you have to be born in India as well as one citizen, one parent has to be a citizen, and then we slightly modified it again by saying that your other parent, okay, your other parent must not be an illegal migrant. If the other person is not an Indian citizen, he must not be an illegal migrant. We are subscribing to the 3 December 2004 wala criteria. So a child born in India in 1980 was an Indian citizen by default. A child born in 1995 in India was an Indian citizen only if one parent was an Indian citizen, and a child born in 2005 was an Indian citizen only if both parents were Indian or one parent was Indian and the other was not an illegal migrant. कुछ चेंज नहीं हुआ है, एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया ऐड कर दिया गया यहां पर। दो 1987 और 2004 में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1987 एंड 2004? We have just added that the other foreigner parent must not be an illegal migrant. That's it. Still, one of your parent has to be, okay, has to be an Indian citizen. But if the other parent is a foreigner, so if he has come to India legally via a visa system or by the laws of the country, following the laws of the land, then that person is eligible to be Indian citizen. Okay. अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट की। सो अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया कैन क्लेम इंडियन सिटीजनशिप बाय डिसेंट if they meet the following condition. Let us see what condition. Before 10th December 1992, the person is a citizen if their father was an Indian citizen at the time of birth and mother's nationality was not considered. Then, after 10 December 1992, the person is a citizen if either parent was an Indian citizen at the time of birth, and after 3 December, the person is a citizen if either parent is an Indian citizen and the birth is registered at an Indian embassy consulate within 1 year. अब यहां पर समझिएगा क्या हो रहा है।
डिसेंट मतलब क्या होता है? डिसेंट का मतलब समझते हैं एंसेस्ट्री। सो यहां पर होता क्या था, दैट इन द 60s and the 70s, many people they migrated. Okay, many IITians they migrated to America, and they, after some time, they gradually got the American citizenship. So their kids were given a chance that, okay, your parent, suppose you were born and your father was an NRI at that time. NRI is an Indian citizen, but he is living abroad. His residency is abroad, but his citizenship is Indian. But gradually what happened, the kid is born, but his father, he got the American citizenship. So जब kid बड़ा होगा, तो बिफोर 10 दिसंबर 1992 अगर उसके फादर इंडियन सिटीजन थे एट द टाइम ऑफ बर्थ, सो दैट पर्सन कुड क्लेम इंडियन सिटीजनशिप। देन आफ्टर 1992 आइदर पेरेंट्स वेयर गिवन, मतलब अगर मदर ने किसी फॉरेनर से शादी कर ली, ओके, इंडियन मदर है, किसी फॉरेनर से शादी कर ली, एंड यू वांट, ओके, दैट यू, ओके, यू वांट टू टेक द सिटीजनशिप ऑफ योर मदर, so then you can claim by descent after 10 December 1992. But after 3 December 2004 what had happened कि either parent आपके इंडियन सिटीजन होने चाहिए और द बर्थ हैज टू बी रजिस्टर्ड एट द इंडियन एम्बेसी विद इन 1 ईयर। मतलब एक एनआरआई को ही अलाउड करेंगे अब। ओके, सो इसका एग्जांपल समझिए, अ चाइल्ड born in London in 1985 to an Indian father and a British mother was considered an Indian citizen. A child born in New York in 2000 to an Indian mother and American father could also claim Indian citizenship. So after 1992, they had added father and mother both. That either the Indian father could be there and then Indian mother could also be there. Okay, because globalization जैसे होने लगा था, so also a lot of girls, okay, Indian girls, they were marrying outside as well. तो उनको ध्यान में रखते हुए ये जो है प्रोविजन लाया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें पता चल गया वी आर टू मच, ओके, हम ऑलरेडी 1 बिलियन क्रॉस कर गए। तो अब जो है दे सेड कि बहुत हो गया। अब जो है अगर आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं उस समय और आपका बर्थ को रजिस्टर करते हैं, तो सिर्फ एनआरआईज को अब अलाउ कर रहे हैं, ओसीआईज को नहीं। ओवरसीज सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को अलाउ नहीं कर रहे हैं। ओके, जो ऐसा होता था ना कि आपके जो पेरेंट्स थे, सपोज यू वेंट टू अमेरिका, okay, आपके parents they went to America, they had you, and then what happened gradually after 7 years your father got the American citizenship, but when you grew up you felt a connect to India and you wanted to claim again, so you can say that देखो जब मैं पैदा हुआ था, when I was born, then my father was there, okay, as an Indian citizen, so please give me by descent, give me the citizenship by descent. But this was put a full stop आफ्टर 3 दिसंबर 2004, और उनको कहा गया कि आइदर पेरेंट हैज टू बी एन इंडियन सिटीजन और नियरेस्ट इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में आपको बर्थ को रजिस्टर कराना है। ठीक है, जब आप फॉरेन सर्विस ऑफिसर बनिएगा, सो देर इज अ कॉन्सुलर सर्विस। ओके, कॉन्सुलर सर्विस, जैसे आप जाते हैं ना, आईएफएस ऑफिसर्स आर, तो दे आर हेड ऑफ द कॉन्सुलर सर्विसेज। तो यही होता है, आपको जो है यही सब में हेल्प करना होगा डायस्पोरा का। Important restrictions क्या है? So if a person is born outside India, they cannot be an Indian citizen by descent if their parents were also born outside India. So if an Indian origin person is born in the US and later their child is born in Canada, the child cannot claim Indian citizenship unless registered with the Indian authorities. Okay. Now let us talk about the third kind of citizenship, citizenship by registration. Okay. All right. So certain categories of people can apply for Indian citizenship through registration if they meet the residency and background requirement. So who can apply by registration? You can be a person of Indian origin who have resided in India for 7 years. So who is a PIO? Who is a person of Indian origin? Somebody in Uganda, जिनको ब्रिटिशर्स लेके चले गए थे, somebody in Fiji, somebody in Trinidad, somebody in Suriname, Guyana, Mauritius. Okay, they can come to India, live for 7 years, and then they can say that देखो इंडिया को मैं वापस अपना घर बना रहा हूं। ठीक है, सी हुआ क्या था कि उगांडा से एक इदी अमीन करके बंदा था। There was a person called Idi Amin, and he had expelled all the Ugandans from Uganda. Sorry, all the Indian Ugandans from Uganda. उन्होंने क्या बोला कि जितने भी इंडियन उगांडन्स हैं दे हैव टू लीव। उसमें बहुत सारे पटेल्स थे, देयर वर अ लॉट ऑफ गुजराती पटेल्स देयर। सो उसमें से 90% तो ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन दे गॉट स्पेशल फ्लाइट्स,
बट उसमें से 5-10% दे केम टू इंडिया, ओके, एंड देन दे वेयर अकॉर्डेड द इंडियन सिटीजनशिप। सेकेंड चीज क्या होता है, पर्सन्स मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन हु हैव रिसाइडेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 7 years. Suppose you are married, okay, to a spouse who is a Britisher, Russian, German, something like that, okay. 7 साल जो है आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को, हु इज अ फॉरेनर, दैट पर्सन, ओके, दैट पर्सन can be an Indian citizenship if they reside in India for at least 7 years. And minors whose parents are Indian citizens, they can also register themselves, okay. अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, आपके पेरेंट्स दोनों है इंडियन सिटीजन, आप लंदन में बॉर्न हुए हो, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन इंडियन कॉन्सुलेट में करवा दीजिए जाके। ओवरसीज इंडियंस हु लिव्ड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 1 year बिफोर अप्लाइंग। तो यहां पर क्या है, रिग्रेट, अमेरिकन सिटीजनशिप ले लिया, अब ट्रम्प आपको तंग कर रहा है। आपको क्या हो रहा है, ट्रम्प आपको तंग कर रहा है, रेसिज्म बहुत ज्यादा है। फिर जो है आप इंडिया वापस आए और एटलीस्ट 1 साल रह के, और उसके बाद आप रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। तो फिर सरकार आपको कहेगी क्या बेटा, ओके, वापस आ गए ना, घर जैसा कुछ नहीं है। सो नेपालीज सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज लिव्ड इन इंडिया सिंस 1990 कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप, and a British woman married to an Indian man can apply after 7 years of residence in India. Okay. So there was an IFS officer who was married to a Russian lady. So, he used to share on Instagram. तो उनकी वाइफ ने अभी हाल फिलहाल में, she has got her Indian citizenship and she had voted in the Delhi election. तो दिल्ली के इलेक्शन में जो है उनका वोटिंग कार्ड बना था, एंड शी हैड वोटेड इन द दिल्ली इलेक्शन एज वेल। तो उनको 7 साल लगा, ओके, आफ्टर गेटिंग मैरिड 8-9 years इट टुक for her to, okay, for her to get the citizenship and then get the voter ID card. So citizenship by naturalization, अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, ओके, अब जो है हम क्या करते हैं, फोर्थ पे आते हैं, और a foreigner can become an Indian citizenship through naturalization if they meet strict condition. The conditions are very strict. आप जाइएगा दूसरे कंट्रीज में, conditions are very easy. Whereas in India, the conditions are very, very strict when it comes to naturalization. We are very, very apprehensive of taking non-Indian origin citizens. It is very difficult to get the Indian citizenship if you are a non-Indian origin person. So उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12 साल है। अगर आपको नेचुरलाइज होना है, सो मस्ट हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर 12 years, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 year ऑफ कंटिन्यूअस रेसिडेंस बिफोर अप्लाइंग। मतलब 1 साल कहीं बाहर नहीं जाना है आपको, कमिटमेंट दिखाना, यू हैव टू शो कमिटमेंट टू द रिपब्लिक, and you must renounce your previous nationality. Why? Because India does not allow dual citizenship, and you must have good character and knowledge of an Indian language, and you must intend to reside in India permanently. Okay. So a German citizen living in India for 15 years can apply for naturalization, and a Pakistani citizen cannot apply if they entered India illegally. Okay, so यहाँ पर जो है अदनान सामी जो है, अदनान सामी का केस था। तो अदनान सामी को कैसे मिला था, एनी आइडिया? एनी आइडिया अदनान सामी को कैसे मिला था? अदनान सामी तो पहली बात तो, यू आर करेक्ट, देखिए, टैलेंट आपने कहा है, यू आर 100% करेक्ट, आर्ट्स के लिए मिला था। तो अदनान सामी की दो दो चीजें थी। एक तो ही वॉज रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट वॉज वन थिंग। सो ही हैज शोन हिज इंटेंट टू बी एन इंडियन सिटीजन, he has shown his intent to be in this republic, to get the membership of this republic. And what is the membership? It is the citizenship. Okay, citizenship is the membership of this club called the Indian Republic. So Adnan Sami was a person of eminence and a person of eminent talent. तो उस बेसिस पे जो है इनको दिया गया था, एंड ही गॉट हिज सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ओके, the government of India can reduce the 12-year requirement in special cases, example to Nobel laureates, athletes or people who have made significant contribution to India. तो इसमें जो है सामी साहब को इस एक्सेप्शन में बीजेपी सरकार ने दिया था। द बीजेपी गवर्नमेंट हैड गिवन देम अदनान सामी इन दिस स्पेशल एक्सेप्शन, ओके, ताकि हम टैलेंट को जो है अट्रैक्ट कर सके। ऑलराइट, then comes citizenship by incorporation of territory, that is section 7. So if India acquires new territory, the residents of that territory automatically becomes Indian citizen.
ओके, सो इंडिया जो है अगर अक्वायर करेगी, जैसे सिक्किम, it became part of India in 1975 and all Sikkimese people they became Indian citizen. Goa जो है it was annexed from Portugal. Initially they were Portuguese citizen and its residents were granted Indian citizen. कल को अगर हम पाकिस्तान को कैप्चर कर लेंगे तो हमें पाकिस्तानी उसको भी देना पड़ेगा पाकिस्तान सिटीजनशिप। ओके, सो जो भी हम एरियाज कैप्चर या अक्वायर करते हैं दैट बेसिकली इट वाज गिवन। ओके, द वी हैव टू गिव द पीपल द सिटीजनशिप। अब हम देखते हैं अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, तो अमेंडमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। अब अमेंडमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इन 2021 प्रीलिम्स दे हैड आस्क्ड अबाउट एन अमेंडमेंट टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल्स एक्ट। एक क्वेश्चन था देवीलाल करके, कि देवीलाल जी ने 3 जगह से इलेक्शन लड़ा था, इफ यू गाइज रिमेंबर, इफ यू हैव सीन द PYQ। सो देवीलाल हैज फॉट फ्रॉम 3 एरियाज इन 1991 फ्रॉम 3 constituencies। Was that a correct statement? Was that a correct statement? The answer is yes. That was a correct statement. Why? Because 1991, there was a amendment in 1998, I think, of the Representation of People's Act, which limited the number of constituencies that you can fight to 2। इसीलिए आप देखिएगा मोदी जी इनिशियली फॉट फ्रॉम वाराणसी एंड आई थिंक अहमदाबाद, बड़ोड़ा, ओके, वडोदरा से लड़े थे, यस, वडोदरा एंड बनारस, एंड वायनाड और अमेठी से आपके राहुल गांधी साहब लड़े थे, जिसमें राहुल गांधी हार गए थे अमेठी से, वायनाड में जीत गए थे। ये चीज जो है, ओके, ये चीज जो है आपको पता है, बट यू कैन ओनली फाइट फ्रॉम 2। देर वॉज वंस ए टाइम in Indian political history before 1998, before the amendment to the Representation of People's Act, where you can fight from n number of constituencies. So there was a person, a politician, Haryanvi politician known as Devi Lal, और वो जो देवी लाल साहब थे, he fought, okay, he fought from 3 constituencies, okay। So that question was dropped, okay, that question was dropped by UPSC due to certain confusion among the aspirants। लेकिन इस टाइप के जो है amendments to the normal acts which are mentioned in the UPSC Lakshmikant rather, it is important। अब citizenship act जो है, this is mentioned in Lakshmikant, so it becomes important for you। So amendments also you can just mark it here कि ये important है। 1986 का अमेंडमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, सो इट टाइटन द रूल्स फॉर सिटीजनशिप बाय बर्थ। इट रिस्ट्रिक्टेड सिटीजनशिप इफ बोथ पेरेंट्स वेयर नॉट इंडियन। पहले क्या था, जस्ट सोली, दैट इज बाय बर्थ ऑन दिस लैंड यू वेर इंडियन सिटीजन, ओके। 2003 अमेंडमेंट, NRC and OCI were introduced। So what is NRC? National Register of Citizens, which defined illegal migrants as those entering India without a valid document, and it created overseas citizen of India। So from the time of 1960s to 2003, when this amendment was done, a large number of professionals, they had already migrated to the West to work in the service industry, to work as managers. And there was a clamor that okay, we don't wish to disconnect ourselves from India. We want to be with India. We don't wish to disconnect ourselves from India. So please give us something. Okay, it is very hard for us to give up our Indian citizenship to overseas citizen of India. This is as good as a citizen. Only thing is you cannot vote, you cannot run for elections, and you cannot own the agriculture land। OCI स्टेटस जो है इट इज सॉर्ट ऑफ ए लाइफ लॉन्ग वीजा, आप ऐसे कह सकते हो। कभी भी इंडिया में आओ, अपना OCI पासपोर्ट दिखाओ, घुस जाओ, दैट्स इट। वीजा इट्स लाइक अ गोल्डन वीजा, कभी भी आप आ सकते हो। ओनली थिंग इज 3 थिंग्स, कैन नॉट रन फॉर इलेक्शन, कैन नॉट वोट, एंड कैन नॉट परचेज एग्रीकल्चर लैंड, ओके। बाकी सब जो है आप कर सकते हो, बाकी सब इंडिया में आके कभी भी आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हो। दिस क्वेश्चन कैन कम, वाई कैन यू टेल मी? ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, दिस क्वेश्चन कैन कम। खालिस्तानी और प्लस अभी शामा सावंत करके जो है, दिस लेडी, ओके, हु इज क्रिएटिंग रकस इन द सियाटल कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया, उससे जो है UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है, ओके। यस, आतिश तासीर वाला भी जो है,
OCI is not an Indian citizen. NRI is an Indian citizen with a foreign residence. NRI has an Indian passport who is living in a foreign country. OCI is a Indian origin guy who is living, who used to be an Indian citizen, and now he is a foreign citizen, but of Indian origin. क्लियर है? अब हम बात करते हैं 2019 अमेंडमेंट के बारे में. दिस इज द रीसेंट अमेंडमेंट. उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहा गया है. सो इट गेव फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, जिसमें हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस हैं. सो ऑल द मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस, उसमें से क्या क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान. वहां के जो माइनॉरिटीज हैं, अगर वो इंडिया आना चाहते हैं, इफ दे वांट टू कम टू इंडिया, सो दे वर गिवन फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप, and it applied only to people who entered India before 31st December 2014. So this was majorly targeted at whom? It was majorly targeted at the Pakistani Hindus. So many Pakistani Hindus, especially from Sindh, because Sindh has used to have a good chunk of Hindu population, they were getting harassed by the locals there. और वहां से जो है, these people, they started to come to India. They started to settle down in illegal colonies, unauthorized colonies, and they had become effectively stateless. तो ये जो स्टेटलेस कंडीशन है, उसके लिए काफी ज्यादा अप्रोर हुआ था, एंड दिस बिकेम अ सेंट्रल इशू. सो द 2019 अमेंडमेंट वाज पास्ड, एंड right now a lot of people have already got their citizenship. Can Pakistani people get OCI? They cannot. Okay, they cannot get OCI. Rather, their properties are seized. सपोज आप पाकिस्तान का अगर आप ले लेते हैं सिटीजनशिप, इफ यू गेट द सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान, यू आर ट्रीटेड एज एन एनिमी एलियन. और आप जो है, बिकॉज अभी भी हमारा सीज फायर है, इफ यू नो, ऑन द LOC वी आर इन अ सीज फायर कंडीशन, देयर इज नो पीस. तो आपका प्रॉपर्टी ले लिया जाएगा. रिसेंटली इन द न्यूज देयर वाज अ न्यूज अबाउट सैफ अली खान. तो सैफ अली खान की जो प्रॉपर्टी है, उसमें से हिज ग्रेट आंट, one of the great aunts, she had gone to Pakistan. Okay, she had gone to Pakistan, and पाकिस्तान में उन्होंने शादी कर ली थी. उसके वजह से 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इट वाज टेकन. उसके बाद एक और न्यूज है, विप्रो के जो चेयरमैन है अजीम प्रेम जी, उनके जो भाई हैं, हिज ब्रदर, ही वेंट टू पाकिस्तान, एंड हिज विप्रो स्टॉक्स दैट वाज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट. ओके, सो ये जो है, ये न्यूज में रहता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा. And this did not apply to Muslims or illegal migrants from these countries. So a Hindu from Pakistan who migrated to India before 2014 can get fast track citizenship, and a Muslim migrant from Bangladesh will not be eligible under this law. ये क्लियर है सभी को कि कैसे कैसे आप सिटीजन बन सकते हैं इंडिया के? एनी डाउट दैट यू गाइज हैव? एनी डाउट दैट यू गाइज हैव? ओके, अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट. आप कैसे लूज कर सकते हैं? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या अगर आप एक सिटीजन हैं बाय बर्थ, ओके, नेचुरल सिटीजन है, नॉट नेचुरलाइज्ड बट नेचुरल सिटीजन बाय बर्थ है, सो कैन यू लूज? ओके, सो द आंसर इज यस, बट उसमें भी एक कैवियट है, वो हम डिस्कस करते हैं. सो सिटीजनशिप एक्ट 1955 वो बताता है, इट टेल्स अस अबाउट हाउ यू कैन, ओके, हाउ यू कैन गेट, ऑल राइट, द सिटीजनशिप. आई विल OCI में अलग से पढ़ाऊंगा, डोंट नीड टू वरी, आगे OCI का अलग से आ रहा है. सो लॉस ऑफ सिटीजनशिप जो है, वो कैसे होता है? ओके, तो आपको पता है अक्वायर कैसे किया जाता है, बट इट ऑल्सो स्पेसिफाइज हाउ सिटीजनशिप्स कैन बी लॉस्ट. सो अ पर्सन कैन लूज इंडियन सिटीजनशिप इन 3 ways: रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन. रिनंसिएशन में क्या है? आपने रिनाउंस कर दिया. Okay, you renounced your Indian citizenship, you gave up it willingly for another country citizenship. Termination क्या है? जब आप एक पर्सन है जो अक्वायर करते हैं अनदर कंट्री सिटीजनशिप, तो आपका ऑटोमेटिक लॉस होता है. तो इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, इन द फर्स्ट यू डेलिबरेटली रिनाउंस. आप बोलते हैं कि मैं अब इंडिया का सिटीजन नहीं हूं, हियर इज द पेपर. And the termination is when you acquire
अनदर कंट्री सिटीजनशिप, तब ऑटोमेटिकली लॉस हो जाता है विदाउट यू साइनिंग एनी पेपर। उसके बाद जो है डेप्रीवेशन, हम बात करते हैं फोर्स्ड लॉस के बारे में। सो क्या डिप्राइव हो सकता है कोई नेचुरल? नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, रिनंसिएशन टर्मिनेशन कैन बी देयर फॉर एनी सिटीजन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन डेप्रीवेशन नाउ। तो क्या डिप्राइव कर सकते हो किसी नेचुरली बॉर्न सिटीजन को? और इज इट ओनली अवेलेबल टू people who have gotten registered or naturalized? Can, suppose you are a person who is a natural citizen of India since birth, your parents, your grandparents, all were Indian citizen. So can you be deprived? Can you be deprived? I have that question. Okay, उसको हम लोग अब देखते हैं. So please remember, India does not allow dual citizenship. If an Indian citizen acquires citizenship of another country voluntarily, they automatically lose Indian citizenship. Renunciation is deliberate, whereas termination is automatic. So renunciation कहाँ लिखा रहता है? Section 8 of the 1955 Act. So how can a citizen renounce their citizenship? A person can voluntarily give up Indian citizenship by making an official declaration. And if the declaration is accepted by the Indian government, you cease to be an Indian citizen. What is the effect on the family member? So if a father renounces his citizenship, his minor children also lose Indian citizenship. So जैसे आपके फादर बाहर गए, आपको लेके, आप 2 साल के बच्चे हैं, एंड योर फादर गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन द स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड ही वेंट देयर, एंड ही आफ्टर 7 years he got the American citizenship, and he renounces the Indian citizenship. So you will also, as a 9-year-old kid, you will also lose it. But when you will टर्न 18, उसके 1 साल के बाद आप रिक्लेम कर सकते हो ये कह के कि मेरे पिताजी बेवकूफ थे, या माई फादर डिड इट एंड इट वॉज नॉट माई कंसेंट, आई वॉन्ट टू बी एन इंडियन सिटीजन. ओके, होता कम है ऐसा, बहुत कम होता है. सो इफ एन इंडियन सिटीजन मूव्स टू कैनेडा एंड वॉन्ट्स कैनेडियन सिटीजनशिप, दे मस्ट फर्स्ट रिनाउंस इंडियन सिटीजनशिप. इफ द कैनेडियन गवर्नमेंट ग्रांट्स देम सिटीजनशिप, इंडिया विल cancel their Indian passport. And if India is at war with another country, renunciation of citizenship is not allowed. मतलब renunciation during war is not allowed, please remember. वॉर के बाद कर सकते हो, वॉर के समय नहीं. देन टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, अगर किसी दूसरे कंट्री का आप वॉलेंटरली अक्वायर करते हो, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो जाता है. ओके, सो एक्ट ऑफ अक्वायरिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप मस्ट बी वॉलेंट्री. तो अगर मान लिया क्या होता है, अगर ड्यू टू मैरिज लॉ, कहीं कहीं पे ये होता है ना कि अगर आपने मैरी कर लिया, सपोज यू मैरिड सम लेडी और सम जेंटलमैन, और आप उस कंट्री का ऐसा लॉ है कि आपने शादी कर ली तो ऑटोमेटिकली जो है आप वहां के सिटीजन बन गए. ओके, यू डोंट नीड टू इवन अप्लाई, देयर आर सर्टेन कंट्रीज विच हैव दिस लॉ. तब आपको इन्फॉर्म करना है इंडियन गवर्नमेंट को दैट सी डियर गवर्नमेंट, आई हैव नॉट वॉलेंटरली अक्वायर्ड दिस, आई जस्ट मैरिड दिस गर्ल और दिस गाय, एंड मुझे जो है ऑटोमेटिक सिटीजनशिप इनकी मिल गई. तो फिर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आपको बेसिकली हेल्प करेगी इससे बाहर निकलने में. So if an Indian citizenship takes up US citizenship, they automatically lose their Indian citizenship and they cannot apply for a government job in India or vote in the elections. इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आपको समझना पड़ेगा कि फोर्स्ड फॉरेन सिटीजनशिप इज नॉट देयर. अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है फॉरेन सिटीजनशिप लेने के लिए, इफ somebody is forcing you, or there is some thing that you married somebody, or you bought some property, something like that, and they gave you the citizenship, you have to inform the Indian embassy that okay, this has happened, I did not get it voluntarily, I did not acquire it on my own accord, they have given me due to certain national laws of theirs. Okay, so then Indian embassy will give you consular access, it will help you. उसके बाद हम डेप्रीवेशन में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. ओके, ओनली अक्वायरिंग, यस यू कैन अक्वायर. आप रिनाउंस जब कर रहे हैं ना, रिनाउंस कर रहे हैं, तब हो सकता है कि अगर आपके पास कोई ऑफर है दूसरे कंट्री का कोई ऑफर है, एंड यू हैव गॉट द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री, तो आप रिनाउंस कर सकते हैं. ओके, लेकिन रिनाउंसिएशन में फंस भी सकते हैं. कैसे? रिनाउंसिएशन में फंसना ऐसे होता है कि अगर आपने रिनाउंस कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया,
एंड सामने वाली कंट्री ने आपको फिर डिनाई कर दिया, आपको ऐसा लगा कि 15 दिन में तो मैं कनाडा का सिटीजन या यूएस का सिटीजन बन जाऊंगा, सो यू सेंड द रेनउंसिएशन डॉक्यूमेंट एंड द इंडियन गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्सेप्ट्स इट एंड कैंसल्स योर पासपोर्ट। बट आप फिर फंस सकते हैं। ओके, सो जनरली जो है, पीपल दे गो फॉर ऑटोमेटिक टर्मिनेशन, or they at least have some kind of proof that they have already got the सामने वाली कंट्री का citizenship, the country citizenship that they are aspiring to get. Okay, so deprivation of citizenship की बात करते हैं। what is deprivation of citizenship? The government of India can cancel citizenship if a person is found guilty of fraud, disloyalty or illegal activity. What is the reason for deprivation? Fraudulent citizenship, अगर आपने citizenship इंडिया का झूठ बोल के या false document submit करके लिया है, for example, you claimed on your document that you have been living in India since 13 years or 17 years, but you have been living in India for 3 years. Initially, the Indian government gave you the citizenship on the basis of your claim that मैं 17 साल से रह रहा हूं और आई एम लिविंग सिंस द पास्ट 17 years, बट लेटर through investigation or some information it was found that you have been living for only 3 years. Then because of this fraudulent activity it can be cancelled. If you show disloyalty to India or you support an enemy nation, then also if you act against India's sovereignty, then also, and if you make an unlawful trade with an enemy country, मतलब एक उसमें देखा है आपने, एक मूवी है बॉर्डर, तो उसमें देर इज अ सीन वेयर अक्षय खन्ना ही चेजेस डाउन a person, an Indian person living in the border area who is giving information to the Pakistanis and he kills him. अगर आपने देखा, पुरानी मूवी है काफी, 97 की मूवी है ना? सो दैट पर्सन इफ कॉट, that person who was supplying information, okay, to the Pakistanis, that person if caught and if he has got his citizenship, okay, so उस आदमी का citizenship cancel हो सकता है। okay, and imprisonment of more than 2 years if a naturalized citizen, देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, if a naturalized citizen is jailed for 2 or more years within 5 years of acquiring citizenship. Kulbhushan Jadhav, who is there in the Pakistani jail for the past 10 years, do you think that person's citizenship has been cancelled? भाई वो नेचुरल बॉन्ड है, वही तो मैं पूछ रहा था तब से। देर इज अ डिफरेंस माय डियर फ्रेंड व्हेन इट कम्स टू डेप्रीवेशन, व्हेन इट कम्स टू डेप्रीवेशन देर इज अ डिफरेंस। अगर आपने 2 साल काट लिए जेल में, ओके, और आप जो है, आफ्टर अक्वायरिंग द सिटीजनशिप, तो इफ अ naturalized citizen is jailed for 2 or more years within 5 years of acquiring citizenship, then आपका कैंसिल हो जाता है सिटीजनशिप। ओके, सपोज किसी को जेल हो गई, नेचुरल बॉर्न है, मतलब उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर, सभी लोग जो है नेचुरल सिटीजन्स हैं, बट द पर्सन ही हैज बीन जेल्ड, वो भी नेचुरल सिटीजन है, हिज इंडियन सिटीजनशिप विल नॉट गेट कैंसल्ड। बट इफ अ पर्सन he has recently got his Indian citizenship by registration or naturalization, and then he goes to jail, okay, then the Indian government can cancel it, and stayed outside India for 7 years continuously. So if a person stays abroad for 7 years without official permission, they can lose their citizenship. Okay. So यहाँ समझिए कि a person who got Indian citizenship fraudulently by lying about their background can have their citizenship cancelled, and a naturalized Indian citizenship who later joins an Indian terrorist group may be deprived of citizenship. स्पेशल रूल क्या है? पर्सन्स बॉर्न इंडियन सिटीजन बाय बर्थ कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ सिटीजनशिप अंडर सेक्शन 10। में तब से यही पूछ रहा था, अगर आप बॉर्न इंडियन सिटीजन हैं देन अंडर सेक्शन 10 यू कैन नॉट बी डिप्राइव्ड। मैं हिंट्स भी दे रहा था आप लोगों को। ओके, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो डेप्रीवेशन है सेक्शन 10 का, जो डेप्रीवेशन है सेक्शन 10 का, उसमें क्या होगा? उसमें जो है सिर्फ नेचुरलाइज्ड या जो सिटीजन्स को मिला है बाद में, वो होगा। अब यहां पर एक और चीज समझिए कि सपोज आपने डिसलॉयल्टी दिखाई है इंडिया की तरफ,
and you are a natural born citizen, मतलब you are citizen since birth, your parents were citizens, your grandparents were citizen, फिर क्या होगा? आप जेल जाएंगे. यस, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी करेक्ट, यू आर वेरी गुड ऑल्सो, बट यू आर वेरी करेक्ट एज वेल. यू विल बी जेल्ड एट मोस्ट. आपका सिटीजनशिप नहीं छीना जाएगा. आपका सिटीजनशिप जो है नहीं छीना जाएगा. लेकिन इस चीज को आपको समझना होगा दैट व्हेन इट कम्स टू डेप्रीवेशन, मैं रिनंसिएशन हो सकता है आपका, रिनंसिएशन हो सकता है, आपका टर्मिनेशन हो सकता है. टर्मिनेशन एंड रिनंसिएशन कैन हैपन, बट योर डेप्रीवेशन, ओके, डेप्रीवेशन, इफ यू आर अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन, आपको जेल होगी. द मोस्ट द गवर्नमेंट विल डू व्हेन यू विल शो डिसलॉयल्टी, गद्दारी दिखाएंगे, तो आपको जो भी भारतीय न्याय संहिता के अंदर सजा है वो लगेगा. लेकिन फॉर एग्जाम्पल देर आर टू टेररिस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. टू टेररिस्ट्स हैं, दे हैव बीन कॉट इन कश्मीर. One terrorist is an Indian citizen by birth, and other terrorist is a citizen who has got his citizenship via registration or naturalization. Okay. So यहां पर क्या है, उनकी जेल हो गई तो दे हैव शोन डिसलॉयल्टी टू इंडिया, दे हैड वेज्ड वॉर अगेंस्ट द रिपब्लिक. तो टेररिस्ट ए इज अ नेचुरल सिटीजन, टेररिस्ट बी इज अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन, मतलब उसको बाद में मिला है, पहले वो नहीं था. So terrorist A will be jailed and terrorist B will be jailed plus deprived of his citizenship. Do you understand now? Do you understand this fact? ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. Persons born Indian citizens by birth cannot be deprived of citizenship under section 10. जेल होगी मैक्सिमम. क्लियर है सभी को? डेप्रीवेशन इज नॉट देयर. ओके, आपको जेल में भेजा जाएगा. वेरएज अगर कोई ऐसा नेचुरलाइज सिटीजन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी पाकिस्तानी हिंदूज आए ना, उसमें से सपोज समबडी टर्न्ड क्रिमिनल विद इन 1 ईयर ऑफ गेटिंग द सिटीजनशिप. सो विद इन 1 ईयर ऑफ गेटिंग द सिटीजनशिप उसको चाकू मार देगा, किसी को जेल हो जाएगा. तब उसको जो है, अगर कंटिन्यूअसली 2 साल से ज्यादा की अगर उसको जेल हो गई है, या मान लिया कि जो हिंदू आया वो एक्चुअली में एक आईएसआई एजेंट था. Okay, he had been sent to India by an ISI agent infiltrating the refugee camp, और इंडियन सिटीजनशिप ले लिया, और यहां पर क्या है, बूट पॉलिश कर रहा है आर्मी कैंटोनमेंट के बाहर में. समथिंग लाइक दैट, दे आर डूइंग बूट पॉलिश एंड दे आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द soldiers and the officer. Now that person is caught, so that person he will be deprived. Okay, बट अगर कोई इंडियन कॉट होगा आईएसआई के लिए काम करने में, होता है ना, बहुत सारे डीआरडीओ वाले पकड़े जाते हैं, गिविंग देयर इंफॉर्मेशन. वो ब्रह्मोस इज माई माई प्रोजेक्ट बेबी, इस टाइप का लिखते हैं ना पाकिस्तानी आईएसआई को, है ना. सो हनी ट्रैप हो जाते हैं, तो उनका नहीं किया जाएगा, उनको डिप्राइव नहीं किया जाएगा. वेयर एज अ पर्सन, पाकिस्तानी हिंदू हु हैज बीन गिवन सिटीजनशिप, he was a Pakistani citizen before, given citizenship, and then he does some gaddari or some kind of crime where he has been imprisoned for more than 2 years. उसके बाद क्या हुआ? हनी ट्रैप मतलब है, हनी इज आपसे मीठी मीठी बातें करके मैं जो है आपको आपसे इंफॉर्मेशन निकाल दूं, तो हनी ट्रैप. ओके, अब हम बात करते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. ओके, ओसीआई. ओके, समबडी इज राइटिंग कि अगर ये हनी ट्रैप है तो सारे पॉलिटिशियंस हनी ट्रैप करते हैं. ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ओसीआई. Overseas Citizenship of India scheme was introduced through the Citizenship Amendment Act 2003, and it provides a form of permanent residency to person of Indian origin living abroad, but does not grant dual citizen. Please remember, OCI is not an Indian citizen. It is just like a golden visa. आपने सुना होगा that Dubai gives the golden visa. Europe में there are a lot of country which gives the investor kind of visa that you can stay there, है ना. ऑल राइट, तो ये सारी जो चीजें हैं, ओके, ये सारी जो चीजें हैं आपको समझना है दैट दिस इज नॉट ए सिटीजनशिप. ओके, दिस इज नॉट ए सिटीजनशिप.
OCI allows foreign nationals of Indian origin to live and work in India indefinitely. So this is a lifelong visa. OCI card क्या है? This is like a visa. You don't need to renew it. You just have to, show your OCI card, and you will be gaining entry into India. Okay. And who is eligible for OCI? Now let us see. A foreign national can apply for OCI. They were an Indian citizen on or after 26 January 1950. So what happens is that the moment NRIs get their US citizen or some Canadian citizen or UK citizenship, the moment they get their foreign citizenship, they immediately go to the Indian embassy or consulate and apply for the OCI card. Okay. बिकॉज अब क्या होता है, पेरेंट्स है ना, सिबलिंग्स है, पेरेंट्स है इंडिया में, तो उनके लिए जो है दे ट्राई टू कि ओसीआई कार्ड मिल जाएगा तो आई कैन कम टू इंडिया विदाउट एनी ट्रबल. ओके. दे वेर एलिजिबल टू बिकम एन इंडियन सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950. तो जो ओरिजिनल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से इफ दे वेर एलिजिबल, दे बिलोंग टू ए टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947. तो हुआ क्या था, मैं गोवा और पौंडीचेरी की बात करूंगा. दैट ए लॉट ऑफ पीपल इन गोवा एंड पौंडीचेरी, स्पेशली दी मुलाटोस. व्हाट आर द मुलाटोस? बेसिकली मुलाटोस होते हैं मिक्स्ड एंसेस्ट्री. ओके, मिक्स्ड होते हैं, जैसे पोर्चुगीज फादर, कोंकणी मदर, ओके, फ्रेंच फादर एंड तमिल मदर. ओके, इस टाइप के केसेस बहुत थे. तो मिक्स्ड पोर्चुगीज और फ्रेंच वाले जो थे आपको पौंडीचेरी एंड गोवा में मिल जाते थे. सो दे वेर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स पोर्चुगल. ओके. तो आफ्टर 1961 when Goa was liberated, they decided to go to Portugal. Okay, so these kinds of people, okay, who have this option of getting the Portuguese passport, and a lot of Goans, they exercise this. Why? Because Portuguese passport gives you the right to go into the European Union. तो यूरोपियन यूनियन में जाने के लिए बहुत सारे जो है पोर्चुगीज गोवंस जो है, दे गेव अप देयर इंडियन सिटीजनशिप एंड दे वेंट एंड दे बॉट द Portuguese passport. So a lot of them, due to cultural reasons also, they adopted the Portuguese passport rather than the Indian passport. But उनको भी सरकार allow करती है, the government allows that you can get. Okay, all right. Then they are a child and grandchild of an Indian citizen. मतलब आप एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, PIO. मतलब आपके फादर या ग्रैंडफादर जो है इंडियन सिटीजन थे, या आपके ग्रैंड मदर, कोई भी हो सकता है. ओके, बट लीनिएज होना चाहिए. स्पाउसेस ऑफ OCI होल्डर्स और इंडियन सिटीजन इफ दे हैव बीन मैरिड फॉर एटलीस्ट 2 years. मतलब यू मैरिड अ इंडियन सिटीजन, अभी आपके पास समय है, आपको 7 साल रहना है. यू हैव टू वेट फॉर 7 years एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन करके आपको मिल सकता है. लेकिन अगर 2 साल हो गया है, सो यू कैन अप्लाई फॉर OCI, एंड देन एवरी टाइम योर स्पाउस ट्रेवल्स टू इंडिया, योर इंडियन स्पाउस ट्रेवल्स टू इंडिया, यू डोंट हैव टू गेट द वीजा. ओके. सो यहां पर जो है आपको समझना है दैट इफ दे हैव बीन मैरिड फॉर एटलीस्ट 2 years, ओके, आप किसी इंडियन सिटीजन से मैरिड हैं या OCI कार्ड होल्डर से मैरिड है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर योर OCI कार्ड. हु इज इन एलिजिबल? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेशी को मिलना ही नहीं चाहिए. एंड इफ दे वेर डिप्राइव्ड ऑफ इंडियन सिटीजनशिप ड्यू टू फ्रॉड, डिसलॉयल्टी और क्रिमिनल एक्टिविटी, एक बार डिप्राइव हो चुके हैं आप, एक बार डिप्राइव हो चुके हैं आप, तो आपको OCI कार्ड भी नहीं मिलेगा. ओके, यू कम थ्रू द नॉर्मल वीजा रूट. कैसे अप्लाई करना है OCI कार्ड के लिए? ऑनलाइन एप्लीकेशन कहां देना पड़ता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बिकॉज दे विल वेट यू वेदर आप एलिजिबल है इंडिया में इस तरीके से अनरिस्ट्रिक्टेड आने के लिए कि नहीं. बिकॉज वंस you get the OCI card, try to understand, once you get the OCI card, you are allowed multiple exits and entry into India. कुछ भी हो सकता है. So Ministry of Home Affairs, it does the background checks. You have to submit the proof of Indian origin, any marriage certificate अगर आप स्पाउस है किसी इंडियन सिटीजन के, या फॉरेन पासपोर्ट और रेसिडेंस प्रूफ. आपका बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एंड देन योर OCI कार्ड इज इशूड. And OCI status is for life.
एक बार मिल गया ओसीआई कार्ड, उसको लाइफ लॉन्ग वीजा है ये आपके लिए, मल्टीपल एंट्री एग्जिट वीजा, कभी भी आओ कभी भी जाओ। ओके। व्हाट आर द राइट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर? लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री ट्रैवल टू इंडिया, इट इज एज गुड एज अ पासपोर्ट। only certain things you cannot do, which any ways, okay, majority people are not interested in, but this is a very good thing. It is as good as a dual citizenship. It is a lifelong visa free travel. You don't need to register yourself with FRRO. What is FRRO? इट इज द फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। मतलब आपको जो है बेसिकली एफआरआरओ पुलिस स्टेशंस को डेजिग्नेट किया जाता है। आपको जो है अगर 180 दिन से आप ज्यादा रह रहे हैं इंडिया में, तो आपको जो है जाके पुलिस स्टेशन विच इज डेजिग्नेटेड एज एन एफआरआरओ, वहां पर जाके अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। और राइट टू ओन प्रॉपर्टी इन इंडिया, yes, OCI card holders does not, they are as good as a citizen. Only certain restrictions are there, लेकिन OCI card मिल गया, you don't have to register yourself anywhere. You can come and go as you please. Then right to own property in India, they can buy residential and commercial property but not agricultural land. आप agricultural land नहीं ले सकते, आप लेकिन रेसिडेंशियल खरीद सकते हो। तो ये कहां से प्रोटेक्टेड है, एनी आइडिया? दिस इज अ PYQ, दैट इज योर PYQ। ये प्रोटेक्टेड है दोस्त आर्टिकल 300A के अंदर। ओके, इफ यू रिमेंबर, तो हुआ क्या था, दैट पहले ये एक फंडामेंटल राइट था, उसके बाद इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी, एज अ फॉरेनर ऑल्सो इन इंडिया यू कैन बाई रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी बट नॉट एग्रीकल्चरल लैंड। वाई? बिकॉज टू प्रोटेक्ट द एग्रीकल्चरल फार्मर्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, हमारे इंडिया में बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड खरीद के उसको मैकेनाइज कर देंगे, या उसको 100% रोबोट से चलाएंगे, समथिंग लाइक दैट, दिस इज द थॉट प्रोसेस। और उसके वजह से फार्मर्स दे विल लूज देयर जॉब। Then right to work in India, you can take private sector job but not the government job. Please remember, no government job for OCI holders. Article 16 काम नहीं करेगा उन पे। Access to education, you can take educations in IIT, NIT under the same rule as NRI. NRI को ज्यादा पैसा देना होता है। तो what is the situation? अगर suppose 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख rupees per semester you have to pay for IIT as a citizen. So as an NRI you will be paying 9 lakh rupees. Okay. सो एनआरआईज के लिए अवेलेबल है, एनआरआईज के लिए अवेलेबल है, बट इट इज 5-6 टाइम्स मोर, $10,000-12,000 समथिंग लाइक दैट। एंड 9 lakhs जो है, उसके बाद जो है इस इनको जो है ओसीआई और एनआरआई बोथ ऑफ देम आर एलिजिबल, एंड यू कैन ओपन बैंक अकाउंट्स इन इंडिया एंड यू आर एलिजिबल फॉर द एनआरआई, एनआरई एंड एनआरओ बैंक अकाउंट्स। अब होता क्या है कि फॉरेनर इंडिया में आएगा और उसको बैंक अकाउंट खोलना है, सो दिस इज इट्स अ नाइटमेयर, bureaucratic nightmare. They have to sign like 45-46 paperworks. But OCI card holders, they can simply walk in and request an NRE or NRO bank account where they can keep their money. Okay. Then restrictions क्या क्या है OCI card holders पे? You cannot vote, you cannot hold constitutional or government jobs, you cannot hold an Indian passport, only an OCI card. You cannot buy agriculture land or plantation property. You cannot participate in Indian politics. स्पेशल परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च वर्क। अगर आपको रिसर्च करना है तो इंडियन गवर्नमेंट विल गिव यू क्लियरेंस, देन ओनली यू कैन रिसर्च, एंड यू कैन नॉट अप्लाई फॉर सर्टेन प्रोफेशनल लाइसेंस। ओके, सो ओसीआई कार्ड होल्डर्स कैन नॉट बिकम लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फार्मासिस्ट अनलेस दे आर अलाउड। आप जो है एक एनआरआई डॉक्टर बन सकते, सॉरी एक ओसीआई डॉक्टर बन सकते हैं, बट यू नीड टू गेट क्लियरेंस। ओके, ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो है, दे विल बी नाउ बी ट्रीटेड एज फॉरेनर्स अगर वो मिशनरी, रिसर्च और तबलीगी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो तबलीगी जमात याद है, तबलीगी जमात में अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड दे हैड कम, मरकज वाली जो एक्टिविटी है, और कोविड फैल गया था उससे। ओके, सो अगर आप मिशनरी हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है, बट दिस इज अ वेरी गुड स्टेप एंड अ वेरी बिग स्टेप। व्हाई? Because a lot of missionaries, they used to come from outside and they used to go into the northeast and the tribal areas, and they used to do forced conversions. Okay, तो अब आपको जो है
स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन ओसीआई, पीआईओ और एनआरआई क्या है? देखिए, पीआईओ जो है, इसको 2015 में मर्ज कर दिया गया था। पहले तीन कैटेगरीज होती थी, ओसीआई, पीआईओ, एनआरआई। ओसीआई एंड पीआईओ यूज्ड टू बी फॉरेन सिटीजन्स ऑफ इंडियन डिसेंट, whereas NRIs used to be Indian citizens with foreign residency. So OCI में जो है फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओसीआई में यू डोंट नीड वीजा। अब दोनों मर्ज हो गया, याद रखिएगा। वोटिंग राइट्स नहीं है आपके पास ओसीआई में। यू कैन बाई प्रॉपर्टी, okay, but you cannot buy agriculture land, whereas as an NRI you can purchase the agriculture land. Why? Because you are a citizen, Indian citizen है आप। okay, गवर्नमेंट जॉब आप एनआरआई, एज एन एनआरआई कर सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट आप रख सकते हैं, यू कैन कीप द एज एन एनआरआई द इंडियन पासपोर्ट। एंड पीआईओ कार्ड was merged into OCI in 2015. So now all PIO card holders are considered OCI. तो पहले डिफरेंस क्या था? OCI people, they were Indian citizen and then they got the, they renounced it, they got it terminated and then they got it। पीआईओ पीपल वेयर जिनके ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर लोग थे। जैसे मान लिया कि somebody went to Suriname और फिजी in the 1880s, okay, and they want to come to India। why? Because Indians जैसे दिखते हैं, Indian culture है, okay, and they want to study in India, India is booming, they want to work in India। So they were given the PIO card। But what happened after that? PIO और OCI को merge कर दिया गया। अब जो everybody, they apply under the OCI category only। Now there are only two categories, one is OCI, the other is NRI। NRIs are citizen, OCIs are non-citizen। NRI can purchase agriculture land and every kind of property, OCI can purchase properties but not agriculture land, okay। NRIs can vote, NRIs can stand in elections, NRIs can basically go for government jobs, whereas OCIs cannot, okay। Revocation, this was in news, why? Because Khalistani activists जो है, a lot of Khalistani activists who basically ransacked the Indian embassy, sorry, the Indian High Commission, and they basically threatened the Indian ambassador in Canada। they were sort of, उनका cancel हो गया था OCI। और if you are using the OCI for fraudulent purpose, if you engage in anti-national activity, if you become a citizen of Pakistan or Bangladesh and you violate Indian law or you are convicted of a crime, then your OCI will be cancelled। तो this is a current affair question। अभी recently जो है खालिस्तानीज का कैंसिल हुआ था। If an OCI holder supports terrorist groups or engages in unlawful activity, their OCI status can be revoked, okay। अगर आप OCI होल्डर है तो ये बहुत होगा, अभी देखिएगा अमेरिका में श्यामा सावंत जो है, शी इज गोइंग थ्रू दिस, उनका जो है ओसीआई को कैंसिल कर दिया गया था। रीसेंट चेंजेस क्या क्या आए थे? सो 2021 में चेंज आया था दैट ओसीआई होल्डर्स मस्ट इन्फॉर्म द इंडियन गवर्नमेंट इफ दे चेंज देयर फॉरेन पासपोर्ट। मतलब अगर जो है आपने यूएस के सिटीजन थे बट नेक्स्ट आप अर्जेंटीना के बन गए, तो यू हैव टू टेल द इंडियन गवर्नमेंट इफ यू आर होल्डिंग एन ओसीआई कार्ड। एंड गवर्नमेंट अप्रूवल इज नीडेड फॉर वर्किंग इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म क्यों? बिकॉज हो सकता है फॉरेन एजेंट है और इंडिया आके लोगों को स्वे कर रहे हैं, रिसर्च और एनी तबलीगी एक्टिविटी। Many OCI card holders demand full citizenship, but the Indian government maintains OCI is only a residency status। Why? Because India does not allow dual citizenship। Revocation of OCI card in certain cases has been there after the 2020 anti-CAA protest। Many OCI card holders, they had used their OCIs to get into India and they went to Shaheen Bagh, and Shaheen Bagh mein they were leading the protests and the riots। So OCI is not a dual citizenship, इसको याद रखिएगा। Is it clear? And you have to follow the Indian laws। अगर रिसर्च करना, जर्नलिज्म करना है, स्ट्रिक्ट रूल्स है आपके लिए। You have many privilege, but you cannot vote, hold government jobs और buy any agriculture land, okay। तबलीगी जमात एक तरीके का आप ऐसे कह सकते हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ मुस्लिम्स का एक कम्युनिटी है, आप ऐसे कह सकते हो कि नॉट, आई विल नॉट से इट इज अ सेक्ट एज सच, इट इज सेक्ट एज सच, बट इट इज लाइक अ कम्युनिटी। जैसे होता है ना
हमारे हिंदुइज्म में भी बहुत सारे सेक्ट्स होते हैं और बहुत सारी कम्युनिटीज होती है। ओके, सो वो तबलीगी जमात जो है यहाँ दिल्ली में उनका सेंटर है। एंड पीपल हु फॉलो द द लीडर्स ऑफ द तबलीगी, दे कम फ्रॉम कजाकिस्तान एंड ऑल दीज इस्लामिक कंट्रीज, एंड देन दे कम टू इंडिया, और वहां पर जो है दे बेसिकली ये जो है पार्टिसिपेट करते हैं कम्युनिटी प्रोग्राम्स में। अब हम बात करते हैं स्पेशल प्रोविजंस अंडर द असम अकॉर्ड। What is the Assam Accord? So Assam Accord was signed on 15th August 1985 between the government of India and the government of Assam and the leaders of the Assam movement. इसमें कोई बहुत स्पेशल आदमी था who was there in the Assam Accords? Any special person that you know who was there in the Assam Accord? No, he's the chief minister. Is the chief minister Himant Biswa Sarma. So he was also, okay, he was also part of the, and Sarbanand Sonowal. So all these people, they were part of the Assam Student Union. Okay, okay, Assam जो है असम गण परिषद जो कहते हैं एजीपी, और इनका जो आसू है, इसमें बेसिकली दीज पीपल हु आर नाउ एट द फोर फ्रंट, okay, who are now at the forefront of the BJP politics and the Congress politics, they used to be, okay, in the Assam Accord. Okay, so इससे पहले जो है, okay, एक क्वेश्चन है कि what happen, okay, to inherited land। अगर आपने जो है इनहेरिटेड लैंड है या आपका कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, इफ यू गिव अप इंडियन सिटीजनशिप, अगर आप इंडियन सिटीजनशिप निकाल देते, आई थिंक समबडी वाज आस्किंग, राघवेंद्र वाज आस्किंग और सिद्धार्थ वाज आस्किंग। ओके, ऑलराइट, तो यहां पर जो है, ओके, यहां पर डिफरेंट आंसर्स हैं बेसिकली। ओके, अगर आपने रिनाउंस कर दिया इंडियन सिटीजनशिप, तो फिर भी, ओके, फिर भी जो है आपकी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसको आप रख सकते हैं अंडर द फेमा रूल्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स जो है उसको फॉलो करके आप रख सकते हैं। ऑलराइट, और एनआरआईज जो है, ओके, एनआरआईज जो है या जो अपने सिटीजनशिप को कर सकते हैं, ये बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड जो है, एग्रीकल्चर लैंड जो है उसमें क्या होता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ओके, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो यहां पर बहुत सारा लीगल पचड़ा है। ओके, मान लिया कि आपने गिव अप कर दिया, सपोज यू गिव अप योर इंडियन सिटीजनशिप, देन यू हैव टू इमीडिएटली अप्लाई फॉर द ओसीआई, एंड देन एग्रीकल्चर लैंड कैन बी ट्रीटेड एज अ सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ओके, सो इसमें इसको ये थोड़ा सा लीगल, दिस इज अ लीगल थिंग। ओके, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ लीगल थिंग। इसका कोई एक सेट आंसर जो है मैं आपको नहीं दे सकता। ओके, जो है आपको सेट आंसर नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज आपको समझना होगा, दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ प्रोटेक्टेड राइट। तो आपको राइट टू प्रॉपर्टी मिलते रहेगा। वो आपका जो प्रॉपर्टी अगर आपने इनहेरिट कर लिया तो वो आपके पास रहेगा। बट प्रॉब्लम कहां आती है, एग्रीकल्चर लैंड में। सो मेनी लॉयर्स, व्हाट दे से इज दैट रादर देन ट्रीटिंग इट एज एन एग्रीकल्चर लैंड, अगर ये आपको इनहेरिटेंस में मिली है एग्रीकल्चर लैंड, दिस विल बी ट्रीटेड एज ए सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एंड यू कैन कीप इट बट यू कैन नॉट बाई मोर। आप जो है और नहीं खरीद सकते, बट इट डिफर्स फ्रॉम केस टू केस। यू हैव टू आर्ग्यू दैट इन द कोर्ट, आपको बताना पड़ेगा दिस इज माई केस। बट अगर ऑलरेडी आपके पास कुछ है एग्रीकल्चर लैंड विच यू हैव गॉट फ्रॉम योर फादर और ग्रैंडफादर, एंड यू हैव गिवन अप योर सिटीजनशिप, एंड यू हैव अक्वायर्ड लेटर से यूएसए का, तो दैट यू कैन कीप दैट थिंग, बट लेटर ऑन यू कैन नॉट अक्वायर मोर। और एग्रीकल्चर लैंड नहीं कर सकते, लेकिन आप एनआरआई हैं तो रख सकते हो। यू कैन कीप दैट एग्रीकल्चर लैंड एंड यू कैन ऑल्सो अक्वायर मोर। आप और भी खरीद सकते हैं। वाई? बिकॉज एनआरआई इज स्टिल एन इंडियन सिटीजन। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट मे बी लीगल फोरम्स पे आपको आंसर मिलेगा। दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर यूपीएससी। अब आसाम परिषद की हम बात करें, आसाम गण परिषद, सो उसमें आसाम अकॉर्ड आता है 1985। सो बेसिकली ये हुआ क्यों था, देखिए 1971 में जो है, उसके पहले 1969 में साइक्लोन भोला आया था। यू ना गाइस नो अबाउट साइक्लोन भोला? सो साइक्लोन भोला हैड कम, एंड उसके वजह से इट हैड wreaked havoc इन बांग्लादेश।
millions of people got displaced and millions of people died. And what had happened was that जो aid आया था, the aid that had come from the west, Pakistan used that aid in West Pakistan जहां पर कुछ नहीं हुआ था. The cyclone came in the Bay of Bengal. It wreaked havoc in East Pakistan, that is Bangladesh, and Pakistan used that aid in West Pakistan. So उसके वजह से गरीबी, भुखमरी, ये सारी चीजें होने लगी. And all the people, they started to go to India. उसके वजह से क्या हुआ? फ्लडिंग of the lower Brahmaputra Valley by the illegal Bangladeshi migrant. Okay. दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज, that after the 1971 war, they started, during the, rather, just before the 1971 war, they started Operation Searchlight. क्या स्टार्ट कर दिया उन्होंने? ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसमें दे स्टार्टेड किलिंग द बांग्लादेशी हिंदूज. सो आसाम में जो है एथनिकली एसमीज पीपल रहते थे. बट व्हाट हैपेंड वाज ए लार्ज अमाउंट ऑफ बंगाली पीपल, they also found their way into the lower Assam valley, and the demographics of Assam, it changed. Even after Bangladesh was created, these people were not ready to go to Bangladesh. So what happened then? These people, they changed the demographics of Assam, and a racial tension started. Assamese, ethnic Assamese versus the ethnic Bengalis who came from Bangladesh area. सो यहां पर जो है आसाम अकॉर्ड जो था, इट वांटेड टू प्रोटेक्ट द कल्चरल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ द असमीज पीपल, एंड इट एंडेड द 6 year लॉन्ग आसाम एजिटेशन. सो यहां पर क्या है? व्हाट वेयर द की एंड स्पेशल प्रोविजंस? सो आसाम अकॉर्ड, इट कंटेन सेवरल स्पेशल प्रोविजन, जैसे कि एक 3 कट ऑफ डेट है. अगर आप 1 जनवरी 1966 से पहले आए हैं, इफ यू हैव कम टू आसाम before 1st January 1966, so people who entered Assam were considered Indian citizen. Why? Because these cases were genuine. They did not come due to cyclone Bhola or Operation Searchlight, or due to the bad economic condition in the newly created Bangladesh. So इनको क्या बोला गया कि ये genuinely आना चाहते थे, they are not forced migrants. तो इनको बोला गया they are Indian citizen. उसके बाद 1 जनवरी 1966 से लेते हुए 24 मार्च 1971 तक, दिस इज द ऑपरेशन सर्चलाइट एरिया. मतलब इस डेट के अराउंड आपका ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट हुआ था. सो पीपल कुड स्टे इन असम, बट दे हैड टू रजिस्टर एंड वेयर डिनाइड वोटिंग राइट्स फॉर 10 years. मतलब 1995 तक दे कुड नॉट वोट, और अपने आप को जो है रजिस्टर करवाना पड़ता था. And if they came after 24th March 1971, they were detected and deported. तो इसी के लिए जो है, अगर आप देखिएगा, so detention centers were recently opened in Assam after the BJP government came and the NDA government came. तो उन्होंने जो है स्टार्ट कर दिया डिटेक्ट करना फॉर पीपल हु केम टू फ्रॉम बांग्लादेश ऑन 24th March 1971. तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? इफ यू हैड कम बिफोर साइक्लोन भोला इन 1969, और अगर आप जो है 1966 से पहले आए थे, यू वेर फाइन. बट इफ यू केम आफ्टर 1966 टू 1971, आप रह सकते हैं, यू कैन स्टे, बट यू वेर डिनाइड वोटिंग राइट, सो दैट द एथनिक एसमीज दे कैन रीगेन देयर पावर. व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट. वो है ना, एक देयर इज अ पर्सन, AIUML करके एक पार्टी है, आई थिंक देयर इज अ पार्टी कॉल्ड AIUML, सो ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम लीग, समथिंग लाइक दैट. और उसका जो है, उसका एक AIUML, राइट, AIUML है. और देन देयर इज वन पार्टी इन आसाम एज वेल. क्या नाम है उसका? आसाम की जो मुस्लिम पार्टी है, ओके, इट इज अ वेरी पॉपुलर पार्टी. ये AIUDF है, राइट, वो AIUML नहीं है, AIUDF है. ओके, AIUDF है. सो जो उसमें ना बदरुद्दीन अजमल करके बंदा होगा. सो दिस पर्सन बदरुद्दीन अजमल, ही हैज हिज वोट बैंक फ्रॉम द बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स. बहुत सारे जो है AIUDF के जो लोग हैं, और सदर्न ब्रह्मपुत्र वैली में दे डोमिनेट लाइक एनीथिंग.
ओके, तो इन इन जैसे लोगों को जो है, इनके वजह से जो लोकल एसमीज थे उनका पॉपुलेशन घटते जा रहा था, उनका जो स्वे था ओवर द लोकल इश्यूज वो खत्म हो रहा था, उसके वजह से सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज जो है वो बढ़ रही थी। ओके, कैन यू टेल मी एनी एसमीज सेपरेटिस्ट ग्रुप दैट यू नो अबाउट? मैंने बताया था क्लास में, उल्फा, वेरी गुड। सो उल्फा वॉज गिवन ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ दिस, सो गवर्नमेंट ने आसाम अकॉर्ड फिर साइन किया। ओके, and the accord acknowledged that Assam had a unique migration issue, and this set Assam apart from rest of India, where the cutoff date for citizenship was 26 January 1950, and detection and deportation of foreigners started who had entered Assam after 24 March 1971 illegally। और ये जो है detection of illegal migrants were slow, which led to the demand of National Register of Citizens। सो CAA NRC बोलते हैं, याद है? CAA NRC, तो NRC इसीलिए था सो दैट द बांग्लादेशीज दे कैन बी डिटेक्टेड एंड सेंट बैक। And the government agreed to take constitutional and administrative steps to protect the Assamese culture and language और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ असम के लिए। वाई? बिकॉज इट वॉज एक्सेप्टेड, द फैक्ट वॉज एक्सेप्टेड कि असम में जो है बंगाली माइग्रेंट्स जो आए हैं, बांग्लादेशी माइग्रेंट्स रादर, दे आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी क्राइसिस फॉर द लोकल असमीज पीपल। ओके, सो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इनिशियली 1951 में क्रिएट हुआ था, बट उसको अपडेट नहीं किया गया था। इट वॉज नॉट अपडेटेड, सो इट वॉज फाइनली अपडेटेड इन 2019, एंड ओवर 1.9 मिलियन और 19 लाख पीपल दे वेयर एक्सक्लूडेड। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ था दैट अ वाइफ वॉज इंक्लूडेड इन द एनआरसी बट द हस्बैंड वॉज एक्सक्लूडेड। सो इसके लिए जो है लोग कह रहे थे दिस इज वेरी क्रूअल। ओके, and many of these excluded from the NRC were unable to prove their citizenship and they were detained in the detention center। अब हम बात करते हैं स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में फॉर आसाम। आर्टिकल 371B, प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ स्पेशल कमिटी इन द आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली, और इस कमिटी का काम क्या था? टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ आसाम्स इंडिजिनस अहोम कम्युनिटी। ओके, and it allows for differential governance in tribal areas because bodo areas भी है। if you remember in Assam there are bodo areas as well, तो उनके लिए जो है अलग से जो है they had things okay for them so that they can be protected, अलग provisions थे। they either they have been allowed to go back to their lives और अभी भी कुछ जो है डिटेंशन सेंटर्स में यू कैन फाइंड सम पीपल, बट मेजोरिटी जो है अब ठंडा टाइप का हो गया, मेजोरिटी दे हैव बीन अलाउड। ओके, सो इस तरीके से जो है हमने कंप्लीट कर लिया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिटीजनशिप। आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे वी कुड हैव डन। अब जो है फंडामेंटल राइट्स की क्लास चलेगी आपकी। वी विल ट्राई टू कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स इन 2 days। उसके बाद जो है एवरीथिंग विल बी डन इन ए सुपर फास्ट मैनर।